Jai Hind students. Now we are going to start with 6.2 exercise. I hope you understood the introduction part of the increasing and decreasing function. Now we will start with the exercise problem first. I am not going to write full question. The question is, show that this function is strictly, SI means strictly increasing on R. R means real valued function. Real value. Second problem है same fx e की power 2x is strictly increasing on R, यानी real number, because these all functions are increasing and decreasing. जो भी functions लगते हैं they all are real valued function. I am writing here जो भी है f dash x. अगर if f dash x is greater than equal to 0 है, it means increasing function. f dash x greater than 0 है, it means strictly increasing function. f dash x less than equal to 0 है, it means strict decreasing function. f dash x less than 0 है, it means strictly decreasing function. Now just remember these concepts and we'll solve these questions now. First of all, fx is 3x plus 17. The first step is find out the derivative f dash x. So f dash x, that is equal to 3. Now automatically 3 क्या है? Greater than 0 है. ऑटोमेटिकली x का कोई भी फर्क इस पे नहीं पड़ेगा. x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, द आंसर विल बी 3 ओनली. सो वी कैन राइट दैट कि ये क्या हो गया? स्ट्रिक्टली f फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है. कब? when x belongs to R. For every, you can write x belongs to R. X is independent over here, so it will not impact this statement. Come to second question. fx is equal to e की power 2x. We have to show that it is strictly increasing on R. Again, strictly increasing का मतलब है greater than 0 होना चाहिए. f dash x, ये आ गया कितना? e की पावर 2x और फंक्शन इस पावर की दोबारा से 2. नाउ हाउ यू कुड कम टू नो? x तो रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एनी नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. ओके, देन व्हाट टू डू? अगर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. कैसे? हाउ? What is the value of e? e की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में होती है? 2 and 3 के बीच में होती है. e की जो भी वैल्यू, जब भी वैल्यू, whatever the value it is there of e, that is between 2 and 3. Maybe 2.34 something वैल्यू होती है इसकी, जो e की वैल्यू होती है. अब अगर इसमें आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, इसमें अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं तो क्या होगा? तो एट द मोस्ट ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं हेयर, तो ये -2 हो गया. -2 का मतलब 2 अपॉन e का स्क्वायर, और e हमेशा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा. सेकेंड, अगर x की वैल्यू 0 भी पुट हो जाती है, अगर x की वैल्यू 0 भी पुट हो जाती है, तो एनीथिंग पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. इट मींस दैट इज f डैश x क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0. सो अगेन वी प्रूव्ड कि फंक्शन इट इज स्ट्रिक्टली
increasing function for every x belongs to R. Pause the video to note down. Now, question problem third. Fx, we have to show this function is strictly increasing in interval 0 to pi by 2 open interval, strictly decreasing in interval pi by 2 to pi. Strictly increasing, strictly decreasing का meaning f dash x greater than 0 and f dash x less than 0. So come on, fx is given to you. Solution. F of x is sin x. f dash x, that is sin का क्या हो जाएगा? cos x. Now we have to check in this interval. See very carefully. सबसे पहले x belongs to, for x belongs to open interval 0 to pi by 2. It means this is first quadrant. In first quadrant जो cos होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है बिटवीन 0 टू पाई बाय 2. 0 पे वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 2 पे 0 होती है. बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, ओपन इंटरवल है तो बीच में जितनी भी वैल्यू चेक होंगी, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव. ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव. सो cos x is positive when x belongs to 0 to pi by 2. Therefore, I can write f dash x is greater than 0. So, in this interval, it is increasing, strictly increasing function. Now, for this is A part is over. Again, for B part. So, f of x is equal to sin x, f dash x is equal to cos x. For strictly decreasing, this f dash x should be less than 0. Now, for when x belongs to pi by 2 to pi, this is second quadrant, and in this quadrant, cos will always remain negative. Therefore, I can write here कि cos x is negative when x belongs to pi by 2 to pi. Therefore, I can write here f dash x is less than 0. The function is strictly increasing, SI, strictly increasing in 0 to pi by 2, and given function is strictly decreasing in pi by 2 to pi. Very simple if you know the concept of strictly increasing, strictly decreasing, increasing and decreasing. Pause the video to note down. So in last question, problem third part left. So now fx is sin x neither increasing nor decreasing in interval 0 to pi. So जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया कि 0 to pi, see here solution. fx is equal to sin x और f dash x is equal to cos x. Now in first part we show that कि cos x क्या है? Cos x is positive when x belongs to 0 to pi by 2. सेकेंड पार्ट में हमने शो किया cos x is negative when x belongs to pi by 2 to pi. So it means between 0 to pi, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका? यहां से ये 0 डिग्री, here pi by 2, here pi. ओके, सो 0 डिग्री पे 1, ये देखिए 0 से यहां से ये क्या हुआ? डिक्रीज होना शुरू हुआ 90 पे. ध्यान से देखिए क्या? cos f dash, cos जो था
ये यहां से लेके यहां तक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और यहां से लेके यहां तक क्या दे रहा है, ये यहां तक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। सो ये ना तो इंक्रीजिंग कहा जा सकता है ना ही डिक्रीजिंग कहा जा सकता है इसको, अंडरस्टूड। ना ही इसको क्या कहा जा सकता है, इंक्रीजिंग, और ना ही ये क्या कहा जा सकता है इसको, डिक्रीजिंग। देयरफॉर वी विल राइट एफ फंक्शन या एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नाउ प्रॉब्लम फोर्थ, कम टू प्रॉब्लम फोर्थ। f of x is given to this, find intervals. Now we have to find the intervals for strictly increasing and strictly decreasing. तो strictly increasing और strictly decreasing का मतलब होता है f dash x greater than 0, f dash x less than 0. So सबसे पहले solution f of x is equal to 2x square minus 3x. Now differentiate f dash x. ये बना 4x minus 3. ओके, फर्स्ट पार्ट ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वी हैव टू फाइंड द इंटरवल। तो इट मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें पता है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो व्हाट इज f डैश x, 4x minus 3 ग्रेटर देन 0। So x is greater than 3 upon, so x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 3 upon 4। कहां तक, दिस इज पॉलिनोमियल, ये रियल नंबर होता है, तो कहां तक, तो इंटरवल क्या आ गया इसका, लिसन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पर, इंटरवल आया x बिलोंग्स टू 3/4 to infinity. Now for second, B part, strictly decreasing, again f of x is equal to 2x square minus 3x, f dash x is equal to 4x minus 3. Now this is given, we have to find the interval for strictly decreasing. Condition क्या होती है strictly decreasing की, f dash x is less than 0. किसके लिए, strictly decreasing के लिए। So 4x minus 3 is less than 0, x is less than 3 upon 4. So what is the interval? Interval आ गए x belongs to open interval minus infinity to 3/4 open interval. So like this you can solve this question. It's very simple, it is already given to you, we have to find out the interval. So very easy, strictly increasing का पता था, we use the property of strictly increasing or strictly decreasing. Pause the video to note down. Now come to problem 5. Again a function is given to you, this, find intervals. Again we have to find the interval, same as it is problem 4. It is given strictly increasing and for strictly decreasing we have to find the intervals. So first of all, solution. क्या सॉल्यूशन है, f of x is given to you 2x का क्यूब minus 3x का स्क्वायर minus 36x plus 7. First of all find f dash x. 3 2s are 6x minus 6 minus 36. If something is common, take common. 6, sorry, x square left, 6, x square minus x minus 6. Find out the factor 6. तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस x आना चाहिए, यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट, x minus 3 x plus 2. I think this will be the 3 to x square, 2x minus 3x, 3 to the 6. Okay, so these are the factors. Now we have to find the value of x. जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने डायरेक्टली यूज कर लिया था, क्योंकि वहां पे x की एक ही वैल्यू आ रही थी, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था।
यहां पे x के दो क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं ताकि हमें इंटरवल्स का पता लग सके. लेट अस सी कैसे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज f डैश x. इसके फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में आ गए. ओके, नाउ पुट f डैश x इज इक्वल टू 0. सो x की क्या वैल्यू आ गई? 3 and x is equal to -2. Now I am going to draw here a number line. ध्यान से देखिए, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. उसके बाद हमेशा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्यों लेते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स ए रियल वैल्यूड फंक्शन. जो माइनस इंफिनिटी से जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डोमेन रियल नंबर ही होती है. सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, फिर आया -2 -3. नाउ दिस क्रिटिकल पॉइंट्स डिवाइड द इंटरवल इन 3 फॉर्म्स, 1, 2 and 3. फर्स्ट इंटरवल इज माइनस इंफिनिटी टू -2, सेकेंड इज -2 to 3, थर्ड इज 3 to infinity. Now the easiest way I am going to tell you, draw a table. ये बहुत ही आसान तरीका है. फर्स्ट वन, राइट हियर इंटरवल्स. ओके, सो सबसे पहला इंटरवल है माइनस इंफिनिटी टू -2, ओपन इंटरवल. अब इसमें फंक्शन, नेचर ऑफ द फंक्शन कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कैसे? इसको कहां पुट करना है? f डैश में. यही करते आए हैं. अगर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. इफ इट विल बी लेस देन 0 देन इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ माइनस इंफिनिटी से -2, कोई भी एक नंबर -2 से छोटा पुट करो, कोई भी. तो -2 से छोटा कौन सा नंबर होता है? इस तरफ को, दैट इज -3. तो -3 मैं पुट करता हूं इसमें. तो -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस वन, ये नेगेटिव. -3 यहां पुट किया तो ये भी नेगेटिव. दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव. सी, एक और तरीका है इसको करने का. यहां पे थोड़ा और इजी वे कर देता हूं. यू जस्ट राइट डाउन द फैक्टर. पहला फैक्टर क्या है? x -3. दूसरा क्या है? x +2. 6 पॉजिटिव ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. देन f डैश x, दिस यू कैन राइट. देन यू कैन राइट एट द एंड नेचर. क्या नेचर होगा इसका? सो इसमें वैल्यू पुट करके देखी, -3 पुट करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा इसका. इसमें -3 पुट किया तो क्या आएगा? नेगेटिव. अगर -3 पुट करने पे ये नेगेटिव बन रहा है तो इसके पीछे की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये सबके लिए नेगेटिव ही बनाएगा. दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन. सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब हो गया इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0. तो क्या नेचर हुआ इसका? इसका नेचर हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, कम टू नेक्स्ट. आप पूरा लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. आई एम यूजिंग हियर शॉर्ट फॉर्म. सेकेंड इंटरवल क्या है? -2 से 3. दिस वन, ये दीज आर द इंटरवल्स नंबर लाइन पे. और वो हमें कौन बताता है? क्रिटिकल पॉइंट्स. सेकेंड इंटरवल है -2 से 3. इसके बीच का कोई भी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू या 3 से छोटी वैल्यू, यू कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यू. सो हम 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 2.5 यू कैन पुट, और 2 ऑल्सो यू कैन पुट. तो मैं 2.5 यहां पुट करता हूं. देखिए ध्यान से, 2.5 पुट करूंगा. 3 से छोटी होनी चाहिए.
तो नेगेटिव आंसर देखिए, अगर कोई भी 3 से छोटी वैल्यू पुट होगी तो ये आ गया नेगेटिव। हियर ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू ध्यान से देखें 3 से छोटी पुट करता हूं, 2.5 पुट करूंगा और कोई भी वैल्यू पुट करता हूं बिटवीन दिस इंटरवल, या -2 से बड़ी वैल्यू पुट कर लो तो यू विल गेट पॉजिटिव आंसर। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ थर्ड इंटरवल 3 टू इंफिनिटी, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करें, इसमें 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट होगी तो ये आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द इंटरवल। अब इंटरवल कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखें, इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सबसे पहले ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा? देखो दो इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना रहा है, इसका मतलब इन दोनों की यूनियन, -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। इस पे f ऑफ x क्या होगा? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड, x बिलोंग्स टू -2 टू 3, इस पे क्या होगा? फंक्शन is strictly decreasing. So like this you can solve all the questions. This is the easiest way which I adopted. Pause the video to note down. So come to question number 6. Question number 6 is having 5 parts. So one by one we will discuss over here. We have to find the interval for strictly increasing and strictly decreasing. All the questions are mostly same. So now in this part, सबसे पहले क्या काम करते हैं? f dash x, that is 2x plus 2. Now here x will give only one critical point. x कौन सा पॉइंट देगा? सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट देगा। तो डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन सॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया था, और यू कैन यूज द सेम which I taught you in the previous question. Put f dash x is equal to 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1. Draw number line, -1, -∞, infinity. Now two intervals are there. कौन से? First interval is when x belongs to -∞ to -1. क्या होगा इसमें? यहां पुट करते हैं f डैश x में। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें -1 से छोटी, ध्यान से देखिए, -1 से छोटी कौन सी होगी? -2 होगी। जैसे ही इसमें -1 से छोटी वैल्यू पुट होगी, कोई भी वैल्यू -1 से, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। सो आई एम राइटिंग हियर f डैश x इज लेस देन 0. So it is strictly decreasing function for this interval. Second, when x belongs to -1 to infinity, -1 के ऊपर आप कोई भी वैल्यू पुट करें, -1 के बाद आता है -0.9, -0.8, -0.5, जैसे इसमें पुट करेंगे -1 पुट कर सकते हैं, सॉरी 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2, this will give positive value. So it implies f dash x क्या हो जाएगा? Greater than 0. So for this interval it is strictly decreasing, for this interval it is strictly increasing function. Okay, come to this. Now this we will do with the other method, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। कौन सा? f dash x. f dash x करेंगे, what will be your answer? ये 0, -6 -4x. Okay, we have to find the intervals for strictly increasing function. Strictly increasing का मतलब होता है put f dash x greater than 0. It means -6 -4
greater than 0. Now we have to solve this. ये क्या है? This is linear inequalities. और अगर आपको linear inequalities में मुश्किल आए, if you find some difficulty, so you can use the number line method. आप number line method भी यूज कर सकते हैं. कैसे? वही same, equal to 0, minus 6 minus 4x equal to 0, minus 4x equal to 6, x is equal to minus 3 upon 2. Draw on the number line. Minus 3 upon 2, minus infinity, infinity. 2 intervals are there. कौन से 2 इंटरवल हैं? एक, ध्यान से देखें, इंटरवल्स. फर्स्ट इंटरवल इज minus when x belongs to minus infinity to minus 3/2. अब देखें, चेक किस में करते हैं? f dash x में. द इजीएस्ट वे, दोनों के साथ माइनस साइन है, तो बेटर वे क्या है? ध्यान से देखें. बेटर वे ये है, माइनस कॉमन ले लिया जाए और इसको ऐसे लिखा जाए, तो इजी वे होगा. सो यू कैन रिकॉग्नाइज द थिंग कि अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा. अब इसमें हम माइनस 3/2 का मतलब होता है माइनस 1.5 से कम कोई भी वैल्यू पुट करें तो माइनस 1.5 से आगे क्या चलता है? इसके आगे क्या आएगा? -2, फिर -3, 4, -5, -6, लाइकवाइज. सो -2 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 4 2 8, -8. तो -8 का मतलब ये हुआ -8 + 6 -2, और अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. f dash x -6 + 4x. You can put any of the value from this. कोई भी वैल्यू आप पुट करें. बस सबसे आसान तरीका यही होता है कि अगर 2 इंटरवल हैं तो जो मिडिल वाला है उसके थोड़ा सा पीछे वाला और मिडिल वाले के थोड़ा सा आगे वाला, दोनों इंटरवल में पुट कर सकते हैं. उससे जल्दी आपको पता लग जाएगा. सो -3/2 होता है -1.5. अगली वैल्यू आएगी -2. इफ यू विल पुट -2 हियर तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. सो इट इंप्लाइज नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या होगा? ग्रेटर देन 0. सो इस पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा. किस पे? इस इंटरवल पे. सो f of x is strictly increasing function for x belongs to -infinity to -3/2. Come to second interval, x belongs to -3/2 to infinity. -3/2 का मतलब हो गया -1.5. -1.5 के आगे चलते हैं. What will be there? -1, 0, 1, 2, 3. So हम -1 ले लेते हैं. Consider -1 over here. f dash x में मैं -1 को कंसीडर करता हूं. Don't put the value, put in rough side. कंसीडर करें, सोचें दिमाग में. -1 आ जाएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा. बाहर नेगेटिव है, सो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या बन जाएगा? नेगेटिव. सो इट मींस f dash x क्या हो जाएगा? लेस देन 0. सो फंक्शन क्या हो जाएगा? f of x is strictly decreasing function. किस पे? when x belongs to -3/2 to infinity. So these are the easiest way to solve this. Pause the video to note down. Now, today we finished from question number 1 to question number 6, first and second part. Rest of the 3 part we will cover in the second video. Otherwise, it will be very long.
टिल दैट जय हिंद।